Hello friends, I am Priyanka from Goel Institute of Technology and Management. Today I'll discuss with you the topic Innovation and Entrepreneurship. The headings which I'll cover under the main topic Innovation and Entrepreneurship are: what is innovation, components of innovation, types and their barriers, strategies for encouraging innovation in business, introduction to entrepreneur, significance of entrepreneurship, their types of entrepreneurship, and strategies to promote entrepreneurship. Let me tell you about what is innovation. First of all, we should know innovation is just about the bringing new ideas, methods, services, products that have a significant positive impact and value. It involves transforming creative concepts into tangible outcomes that improve efficiency and effectiveness or address unmet needs. There are some components of innovation that are creativity and ideas, culture of innovation, resources and infrastructure, leadership and mission, feedback and adaptation, and effective risk management. It means that these are the components which affect the innovation or which can make innovation possible in the organization. Let me tell you. Next one is types of innovation. That one is open disruptive innovation. These are technologies or innovation that makes expensive or sophisticated products or services accessible and more affordable to a broader market. यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इतना ज़्यादा अफोर्डेबल बना देना कि वो मार्केट उसका बड़ा हो जाए और कस्टमर हमारे परचेज करे और उसको यूज़ करे. सेकेंड वन इज सस्टेनेबल इंक्रीमेंटल. सस्टेनेबल इंक्रीमेंटल इट जस्ट इन्वॉल्व्स द आइटरेशन, मीन्स टू adding the enhancement to existing products. Third one is social service innovation. It basically deals with the social issues. We are innovating or we are using innovations process just to solve the social issues or the environmental issues. Fourth one is digital business model. The best example is just the e-commerce. Through using this one, we can generate the revenues also, and these are just to create the value and generate revenues online or via the cloud. They leverage the software to deliver products, services or experience to customers. It doesn't need personal experience. Next one is technology process innovation. It provides the software or the tools which involve digital platform, intelligent process automation used to efficiently and intelligently create and deliver products or services, as well as improve speeds and agility of process across the enterprise. Last one, computing innovation. It just involves continuous exploration and implementation of advancements in computer science, software engineering and related fields. Let's move to the next slide, that is barriers to innovation. The points which will come under this are fear, lack of leadership, short-term thinking, lack of resources capacity, lack of collaboration and lack of urgency. It just simply means कि हम डर रहे हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के लिए. दूसरी चीज़ कि हमारे कोई लीड करने वाला नहीं है. वी हैव ट्राइड, वी जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ आइडिया, वी जस्ट वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया, बट नो वन इज़ देयर टू लीड अस. सो वहाँ पे इनोवेशन नहीं पूरी तरह फुलफिल हो पाएगा, इनोवेशन प्रोसेस. लैक ऑफ रिसोर्सेज. इनोवेशन के लिए हमने सब कुछ सोच लिया, इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ हैं कि जिसके थ्रू हम इनोवेशन कर सकें. तो जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम इनोवेशन को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हम वो आइडिया ड्रॉप हो जाएगा. लैक ऑफ कोलैबोरेशन. वन इज़ देयर, ठीक है, इनोवेशन प्रोसेस को करने के लिए इट वॉन्ट्स
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, लेकिन एक कर रहा है दूसरा उसको कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, या कोलैबोरेशन ऑफ ग्रुप इज़ नॉट देयर, तो फिर वो इनोवेशन इट विल बिकम अ बैरियर। लैक ऑफ अर्जेंसी, जैसे काम चल रहा है हम बस करते जा रहे हैं, हमें उसकी नीड नहीं लग रही, तो दीज आर द बैरियर्स टू इनोवेशन। नाउ लास्ट वन, लेट मी टेल अबाउट द स्ट्रैटेजीज विच कैन इम्प्रूव इनोवेशन, विच आर फोकस ऑन द जॉब्स टू बी डन। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कितनी बेहतर तरीके से हम कर सकें, उस चीज़ को करने के लिए हम नए नए आइडियाज़ लाएंगे, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे जो इनोवेशन है वो दीज आर द मेथड, इसके थ्रू इनोवेशन प्रोसेस अच्छे बेहतर आ सकता है। सेकेंड वन इज़ क्रिएट स्पेस फॉर इनोवेशन, मीन्स टू से इनोवेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्रेरित करे, एक हम जगह दे कि हम इनोवेट कर सके, उसके लिए टाइम दे कि हाँ उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम ये बात होनी चाहिए कि कुछ आप नया करिए, कुछ अपने वर्क कैसे और बेटर तरीके से आप दिखा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकें, तो ये इम्प्रूव करेगा, ये किसी एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट करेगा। एक्सपेरिमेंटेशन होगा, और अगर आप रिस्क लेंगे तो ऑटोमेटिकली इनोवेशन जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थर्ड वन इज़ एम्ब्रेस एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिस्क। अगर रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, तो अगर रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे तो आप खुद अपनी वर्क के लिए और ज़्यादा उस वर्क को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए रिस्क लेंगे, और रिस्क लेंगे तो रिस्क कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली कुछ नया करने की चाहत होगी, कुछ नया करने की चाहत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, तो दैट विल ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज इनोवेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी आपने आइडिया सोचा है जिसको आप क्रिएटिविटी का नाम देते हैं, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या फिर दूसरे शब्द में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, इसमें यू कैन कंक्लूड। फोर्थ वन इज़ promote openness between individuals and team. As we know, in an organization, team is there. टीम जो है इंडिविजुअल से बन के प्रिपेयर होती है, तो इंडिविजुअल्स को इतना ओपन होना चाहिए कि वो अपने पॉइंट्स को रख सके, अपनी टीम में डिस्कस कर सके और टीम उसको एक्सेप्ट कर सके या फिर अपनी बात कह सके। एक प्रॉपर एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, तो जिसके थ्रू इनोवेशन बहुत आसानी से हो सकता है। नए नए आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, तो दे विल डू इम्प्लीमेंट। लास्ट वन इज़ लुक फॉर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी व्हेन वी आर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़। अब जब भी आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं, तो आपको एक क्रिएटिव और इमेजिनेटिव एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो है एक तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनेगी हमारे इनोवेशन को enhance करने के लिए, improve करने के लिए। Now let's move to the next topic, that is entrepreneurship. The word entrepreneurship, it is derived from the French word entrepreneur. That means it is a combination of two words, that is entire and frangere. Entire means between and frangere means to take risk. That is, it is a combination of new venture plus risk equal to entrepreneur. The entrepreneur is the one who takes a risk to take a new venture, to take a new company, to start a business, is called as entrepreneur. वो इंसान, वो पर्सन कहलाएगा entrepreneur, जो कि रिस्क लेगा और कुछ रिस्क ले करके कुछ नया बिजनेस या नया कुछ स्टार्ट करे. That is called entrepreneur. Entrepreneurship has its own definition, which is a popular one, according to Professor F. Drunkard. Entrepreneurship is neither a science nor an art. It is in practice. It just means, if you describe the entrepreneurship, it just simply means it's only a practice. It's the word can't define it properly. Practice makes it entrepreneurship. So some characteristics of entrepreneurship are ability to take risk, innovation, visionary, and leadership quality. Entrepreneur must have the leadership quality. He must have vision. He should be open-minded and flexible, and he should know very much
about the products, his own products. The next point is types of entrepreneurship. The first one which comes under is small scale businessman. It involves grocery shop, traveler agent, plumber, barber shop. मतलब ये अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं जो कि छोटा होता है और ये अपनी फैमिली मेम्बर्स को हायर करते हैं उस बिज़नेस को करने के लिए. सेकेंड वन इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप. ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक विजन रखते हैं जो ऐसा विजन है कि ऐसा ये सोचते हैं कि हम वर्ल्ड को चेंज कर देंगे. इसमें जो वेंचर कैपिटल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. देन द थर्ड वन इज़ लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें क्या है, लार्ज कंपनी जो है वो एक डिफाइंड लाइफ साइकिल रखती है. कंपनीज ग्रो एंड सस्टेन बाय ऑफरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड देयर मेन प्रोडक्ट्स. They build pressures for the new companies to change the competition, to change customer preferences. The fourth point is social entrepreneurship. ये जो entrepreneurship ये होता ही केवल social welfare के लिए, यानी ये they work for the society and they produce products or services just to resolve the problems of society. Innovative entrepreneurship. It is the practice of establishing, creating new business ideas intending to generate profits, assist their community and accomplish companies' goal. यानी innovations वगैरह रखना, ठीक है, जिससे कि profit generate हो. Last not but the least one. Entrepreneurship. It is just an act of behaving like an entrepreneur. वो entrepreneur होते नहीं हैं, लेकिन वो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर प्रोएक्टिव, बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. और इट इज़ नोन एज अ प्रैक्टिस ऑफ ए कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्टाइल दैट इंटीग्रेट्स रिस्क टेकिंग, इनोवेशन approaches as well as the reward and motivational techniques. The last one is adaptive entrepreneurship. It is a process of trying to build on and improve an existing business model and products on business. They have comprehensive understanding of the business landscape in their particular industry. They seek to develop. Now, the next point is significance of entrepreneurship. It means entrepreneurship की ज़रूरत क्या है, entrepreneurship होना क्यों चाहिए. As we know, entrepreneurship simply means it is the ability to take or readiness to develop a skill that requires to start a business. Okay, तो अगर ऐसा होगा, अगर कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में, यानी कि रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा कोई भी बिज़नेस करने के लिए, ठीक, तो क्या करेगा वो बिज़नेस करने के लिए उसने आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन में स्टार्ट किया, तो दैट वन इज़ कॉल्ड इनोवेशन. क्योंकि वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, स्टार्ट करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को हायर भी करेगा, तो जॉब क्रिएट होगा. अब हायर करेगा तो वेल्थ क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट यहाँ हुई क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा. कैसे, प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जिस तरीके से वो लोग डील करेंगे उसे मार्केट में ड्रॉप करेंगे, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा और कंज्यूमर की चॉइस में एक और प्रोडक्ट या सर्विस आएगा, ठीक, तो पैसे आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो ये क्या होगा, एक तरह से वेल्थ जनरेशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, ठीक, वेल्थ क्रिएशन. अब अगर उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर का बिजनेस और अच्छे से ग्रो हुआ तो क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनल से एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक, अगर बहुत अच्छे से वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से कॉम्पिटिटर से डील कर ले रहे हैं तब, ठीक. और फिर उसके बाद अब ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में कैसे आया, पहले उस पर टेस्टिंग हुई, ठीक, टेस्टिंग हुई अच्छे से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली प्रोसेस पूरी कंप्लीट हुई, तब जाके आया ना. तो दैट्स वाई
these are the points which we will consider in the significance of entrepreneurship, that our economic growth होगा, innovation होगा, job creation, wealth creation होगा, innovation technologies use होगी ही होगी, क्योंकि रिस्क लिया जाएगा अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम उसमें काम किया जाएगा. जैसे जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, सर्विसेज मार्केट में आएंगे, वो जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनेगी और इसके तहत ग्लोबल ट्रेड होगा. फिर और अच्छे से अगर काम हुआ तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके. और ये सोशल प्रॉब्लम पे भी डील करता है. कैसे? ये जो भी एम्प्लॉयज़ या किसी भी पर्सन को हायर करेगा तो ये नहीं देखेगा कि वो हु बिलोंग्स टू विच सोसाइटी. ओके, उसको केवल एक स्किल्ड और एबल्ड एम्प्लॉय चाहिए. ठीक, तो इससे क्या होगा, सोशल प्रॉब्लम्स पे भी डीलिंग आएगी और टाइम टू टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पुअर पीपल की हेल्प करते हैं. तो क्या इससे सोशल इश्यूज भी सॉल्व होंगे. ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज लिंक बिटवीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. First of all, we should know that as I have discussed in the previous topics, what is innovation and entrepreneurship. So we can summarize the terms like this. Innovation means the practice of creating new ideas, plans, with the intention of generating profits and companies. That is कि ये इस तरह की ऐसे जिसके थ्रू आप नए आइडिया, नए इनोवेटिव क्रिएट कर सकते हैं, जिसका मोटिव प्रॉफिट जनरेशन है. और आप कम्युनिटी को भी हेल्प करें, दैट मीन्स कम्युनिटी मीन्स जैसे सोसाइटी को आप हेल्प करें, और साथ ही साथ आपका जो मेन विजन है द कंपनी उसको भी सफल कर सकें. इन द लॉन्ग रन, in order to run a business, to survive and grow, innovative a product or services becomes a crucial step. And as observed and experienced innovation, new business helps an entrepreneur to improve restore a particular business. Innovation is ऐसी टेक्निक है, by creating a new values, by adding a new values, कोई भी entrepreneur अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन से टाइम टू टाइम बेहतर तरीके से ग्रो करवा सकते हैं. जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अच्छे से मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं. Importance of innovation in the entrepreneurship. In order to survive in the market, looking for innovative solutions for their customers to make them satisfied, workplace innovation comes into place. It means अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने कस्टमर्स को पूरी तरह कंटेंटेड फील कराना चाहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम इनोवेशंस करने पड़ेंगे. Harnessing the power of innovative video marketing empowered by cutting-edge online video editors is the key to staying ahead and living a lasting. Means to say, आप innovative video in the form of marketing. It is just like a marketing process. अपने product और services marketing लाने के लिए आप जो इनोवेटिव वीडियोस बना सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस बना सकते हैं, एडिट्स का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को डे बाई डे और मार्केट में लास्ट कर सकते हैं. Important for companies to build innovative structure for their organization that help them to stay ahead in this competitive environment. It is crucial for emerging trends in market demand, allowing business to create new and innovative processes for their target audience. Means to say, अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ नए नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उसमें नए नए चेंजेस कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप अपने बिजनेस को ये समझ सकते हैं कि वो आगे जाके उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट
is competitive creativity. To stay relevant in a competitive landscape, business must continue to innovate by developing producing services and involving their benefit. Innovation plays a central role in entrepreneurship as it involves the relationship or improvement of existing offering, enabling entrepreneurs to meet markets, trends, and satisfy customers' demands with innovative strategies. इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू ही आप जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स के साथ यूज करके अपने सर्विसेज यूज करके ट्रेंड्स के साथ आप चल सकते इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में innovative and entrepreneurship relationship. Both are close related but distinct concepts. ये दोनों related भी हैं लेकिन एक से अलग होता concept. Innovation involves introducing something. Innovation जो है कुछ भी नया करने का ऐसा तरीका जो भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर जैसे कि बिजनेस मॉडल ideas, services. Entrepreneurship focus on turning a great idea into a viable business opportunity. और entrepreneurship जो है फोकस करता है कि आप आइडिया को एक एक पर्टिकुलर आइडिया को कैसे आप मौका दे करके एक बिजनेस के फॉर्म में innovation is the starting point for entrepreneurship. It goes further by taking a risk and responsibility of bringing those ideas to market and becoming successful business. Risk जो है वो entrepreneurship के साथ हमेशा एसोसिएटेड होगा लेकिन इनोवेशन के साथ वो स्टार्टिंग पॉइंट पे इनोवेशन के साथ रिस्क एसोसिएटेड. It doesn't mean that every time innovators has to face the risk. No, there are some distinct features जो कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट अलग करता है जैसे कि डेफिनेशन मीन्स जैसे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं इनोवेशन इज जस्ट दैट क्रिएटिंग ऑफ समथिंग न्यू और एंटरप्रेन्योरशिप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप वो इनोवेटिव आइडिया को सोच करके जो काम करेंगे और एक कुछ प्रोडक्ट या एंटरप्राइज के फॉर्म में उसे मार्केट में लाएंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप है. रिस्क टेकिंग इट इज एसोसिएटेड लो रिस्क है इनोवेशन में लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में टेकिंग सिग्निफिकेंट रिस्क टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू सक्सेसफुल बिजनेस. ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व करता है क्योंकि हमको आइडिया को यूज करके एक बेहतर आइडिया को जो कि किसी ने यूज नहीं किया उसको यूज करके हमको एक बिजनेस स्टैब्लिश करना तो ये रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व इन कंपेरिजन टू इनोवेशन. Innovation is durable. It has a short lifespan. इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत छोटी होती है but entrepreneurship it exhibits long-term durability, continuous from creation. इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वी आर एस्टैब्लिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो डे बाय डे उसमें आपको वैल्यूज़ को क्रिएट करना है वैल्यूज़ को ऐड ऑन करना है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहने हैं. इनोवेशन इट हैज़ इंटरेस्ट means to say innovators may close interest often the idea stage or entrepreneurs persist, adapt and work hard to make their ventures more successful. In जो इनोवेटर्स होते हैं इनोवेशन जो करते हैं उन्हें इनोवेटर्स जो होते हैं उनका क्लोज इंटरेस्ट होता है जब आइडिया के स्टेज पर जब आइडिया जनरल आइडिया को लाते हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्या उनको आइडिया को यूज भी करना है उसे रखना भी है और उसके लिए ज़्यादा वर्क हार्ड भी करना है जिससे उनका वेंचर्स जो है सक्सेसफुल. Of innovation in the form of the point of difference is skill. That is, innovation it focuses on the inquiry, creativity and experimentation. Innovation जो है वो inquiry, creativity और experimentation पे focus करता है. Entrepreneurship it requires इसको ज़रूरत है planning की, leadership, management,
decision making, risk taking, hard. Now, the next topic is challenges faced by the entrepreneurs. जो भी challenges entrepreneurs face करते हैं अपने enterprise को, अपने business को establish करने के लिए, वो challenges इस इन points में हम देखें. First is financial challenges. As we know, entrepreneur कौन होते हैं जो कि आइडिया को, अपना आइडिया यूज करके, जिस आइडिया को किसी ने पहले कभी नहीं यूज किया, उसको यूज करके आप एक एंटरप्राइज बना हुए उस आइडिया. तो उस आइडिया को यूज करके आपने कैपिटल लगाया. जो सबसे पहला कैपिटल लगाया जाता है उसको कहाँ, जहाँ से भी हम पहला फर्स्ट कैपिटल लेते हैं उसको बोला जाता है एंजल कैपिटल. जो एंजल कैपिटल यूज करके फिर वेंचर कैपिटल यूज करके आपने अपनी फॉर्म इस्टेब्लिश की, अपनी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करी. उसमें आपको फाइनेंस लगा. उस बिजनेस को डे बाय डे, उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको प्रॉपर फाइनेंस की जरूरत होगी. दैट फाइनेंस comes under financial challenges. It has the limited capital and cash flow issues. Means to say many entrepreneurs struggle with limited initial funds. They can seek funding from sources like personal savings, loans, ventures, or angel investors. Cash flow issues. Managing cash flow is critical. Proper budgeting, monitoring expenses, maintaining a financial cushion can help. As I told you कि आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको तो सबसे पहले अपना एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने के जो प्री खर्चे होंगे उनको लेने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ से कैपिटल लें. वेदर शुड आई ऑप्ट एंजल कैपिटल, वेंचर कैपिटल, या फिर हम लोन ले, अपनी पर्सनल सेविंग को यूज करें. ये सबको, इन सारे फंड्स को मैनेज करना और फाइनेंस करना, ये सब कुछ एंटरप्रेन्योर फेस करता है. That's why it is a kind of financial challenge. Next one is market competition. As well, आपको अपना एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए मार्केट में आना है. उस मार्केट, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आने के लिए आपको मार्केट कॉम्पिटिशन्स को फेस करने पड़ेगा. इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर. Competitive landscape. Entrepreneur often face well-established competitors. अगर आप मार्केट में नहीं है तो ऑफकोर्स जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग फर्म्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट इज देयर. ठीक है, तो ये जो है ये वेल एस्टेब्लिश्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट और उन्होंने इतना स्ट्रगल करके नाउ अब वो हर कस्टमर्स की जुबान पे कि अगर हमें परचेज करना है तो ऑनलाइन परचेज अमेजन. मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स दे प्रेफर टू गो देयर. तब आप इन एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स को ऑलवेज फेस करें. तो दिस इज अ काइंड ऑफ चैलेंज जो एंटरप्रेन्योर हमेशा फेस करे. द पॉइंट्स विच कम्स अंडर द मार्केट कॉम्पिटिशन्स आर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और मार्केट रिसर्च. आप जो है प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे, उसके लिए आप उस प्रोडक्ट को लेने के लिए पहले आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज़ करें. प्रॉपर जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस पूरी तरह सक्सेसफुल होगी तभी आप उससे मार्केट में लाएंगे. तो इट कम्स अंडर द मार्केट. थ्रू मार्केट रिसर्च इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड देयर target audience, competitors and market trends, enabling them to make informed decisions. Third type of challenges which faced by the entrepreneurs are uncertainty and the risk. That is risk management and adaptability. It is the foremost point which comes under the entrepreneur. That means कि risk, अगर entrepreneur वही कहलाएगा जो risk ले. Who has the capability to take risk. अगर आप risk लेने की आपकी capability ही नहीं है तो आप entrepreneur नहीं कहलाएंगे. So entrepreneur can't eliminate the risk but can manage it through careful planning. आप जो है अपने risk को आप ignore नहीं कर सकते.
आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सिनेरियो एनालिसिस, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करके रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी, being flexible and willing to pivot when necessary can help entrepreneurs navigate uncertain situations. Now the fourth is legal and regulatory issues. अगर आप अपनी कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आप क्या मार्केट में सीधे जाके उसको इस्टेब्लिश कर देंगे? नहीं, मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको स्टार्टअप्स देने के लिए सबसे पहले आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। लीगल फॉर्मेलिटी इट टेक्स मच टाइम, ये आराम से 5-6 मंथ्स आराम से लेगा। फिर और भी जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो इसके अंदर आएंगे उन सब के आपको कंसर्न लेनी पड़ेगी, तब जाके यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। So the points which comes under this compliance. Entrepreneurs must be aware of and adhere to local, state and federal regulations. Legal counsel and compliance checks can help prevent legal problems. तो जो जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, लीगल काउंसिल एंड कॉम्प्लायंस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्केलिंग चैलेंजेस। Points which comes under it is scaling too fast. Scaling prematurely can strain resources, gradual and controlled growth with a focused scalability and can bring this issue. Maintaining quality. As a business grows, maintaining the quality of products और सर्विसेज can be challenging. जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को टाइम टू टाइम इसकी क्वालिटी को मेंटेन करें। इसमें फाइनेंस भी आपका जाएगा और इसमें साथ ही साथ आइडिया जनरेट होगी, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हायरिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट। आप इफ़ यू आर अ एंटरप्रेन्योर तो आपको ऑफ कोर्स यू आर क्रिएटिंग अ जॉब्स, दैट मीन्स you have to hire some employees, superior subordinates, those who work together, coordinates together and run your business, you run your enterprise. So ये किन को आप हायर कर रहे हैं, कैसे, ये whether they are skilled or not, efficient or not, you have to decide it because this is your enterprise. So talent management and hiring management, ये it comes under this. That means the points are finding the right team. ये अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं हैं, दे आर नॉट टैलेंटेड, दे आर नॉट स्किल्ड, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं फेलियर्स को फेस करने के। दैट्स वाई आपको एक केपेबल, एक एफिशिएंट, एक क्वालिफाइड टीम को हायर करना, साथ में अच्छे से काम करे, ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटिंग skilled and motivated employees is vital. Networking, using job platforms and conducting thorough interviews can help identify and right candidates. Retention. Keeping valuable employees often involves offering competitive compensation, opportunities for growth and a positive environment. Now the next point is marketing and customer acquisition. लिमिटेड मार्केटिंग बजट एंड कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स पे लॉन्ग टर्म कायम रहे, उसके लिए आपको कस्टमर्स के सारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को टाइम टू टाइम उस पर जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। So entrepreneurs can use cost-effective marketing strategies like social media, content marketing and email campaigns. आप टाइम टू टाइम अपने campaigns करिए, सोशल मीडिया यूज़ करिए और इसको यूज़ करके आपको अपना जो मार्केटिंग टेक्निक्स है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है, कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ इफेक्टिव भी करना है और अपने कस्टमर्स को मार्केट में रिटेन रखना है कि वो आप ही का प्रोडक्ट या आप ही का सर्विसेज है। Building strong customer relationships, providing exceptional service can lead to a repeat business and referral. Now, the next challenge
will be faced by the entrepreneur is time management, wearing multiple hats. Entrepreneurs often juggle various roles, prioritizing tasks, delegating, and outsourcing non-core functions can free up time. Setting goals, establishing clear goals and milestones help entrepreneurs stay focused and organized. अगर आप अपना गोल क्लियर रखेंगे तो तो यू विल, इफ़ यू हैव अ क्लियर गोल, क्लियर विजन, तो फिर आप अपने वर्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो. यू कैन बी अ फोकस्ड वन, सो यू कैन अचीव योर गोल्स अर्ली. Emotional and mental health. This is the challenge which faced by the entrepreneur. Stress management. For this, stress management is necessary. Entrepreneurship can be successful. Practicing self-care, seeking support from peer or mentors, maintaining a work-life balance are crucial. आपको entrepreneur को रिस्क भी लेना है, सबको मैनेज भी करना है, कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है, अपने इंटरनल मैनेजमेंट भी करना है, और रिसोर्स को कैसे काम कर रहे हैं उन सबको मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस. उसके लिए आप जो है एंटरप्रेन्योर को अपने को मैनेज करना आना चाहिए. दैट इज़ ही शुड नो हाउ कैन ही टैकल हिज stress so he can be more focused towards his duties. Now, failure and resilience.